Can you see it now? Yes, sir. Okay. So now we are going to discuss about the applications of entropy principle. Okay. So right now the last topic which I discussed was this one, that ds of the system plus ds of the surrounding has to be greater than 0. Just a minute, wait. I will have to wait for that. Yes. Okay. So this was the uh, equation that ds of the universe is greater than 0, or the second one is the more better, ds of the system plus ds of the surrounding has to be greater than or equal to 0. Okay, so let us see now, let us move to the next topic. Now let us try to understand what are the applications of this principle of increase of entropy or entropy principle. Okay, uh, the first one is the transfer of heat through a finite temperature difference. This one. Now, what has been given to us here is, this is one of the reservoirs. This is reservoir A, and this is reservoir B. So, reservoir A is at a temperature T1, whereas the reservoir B is at a temperature T2, and Q amount of the heat is being lost by the reservoir A, and it is going to the reservoir B. Okay, so we have to prove that this is basically a irreversible process. Okay, and or otherwise we have to say that transfer of heat through a finite temperature difference makes a process irreversible. Okay, so let us try to understand how we can do it. Now we will have to make use of principle of increase of entropy, the principle which we have just studied actually. Okay, now in case of principle of increase of entropy, there are two things. One is the delta S of the universe. Delta S of the universe, that should be equal to delta S of the system plus delta S of the surroundings. So what we can do is, we can assume we can assume one reservoir to be system and other reservoir to be surrounding. So we can assume that this reservoir A is the system and reservoir B is in the surroundings, along with this rod which have been shown here. Okay, so that means we can write delta S of the universe is equal to delta S of reservoir A plus delta S of the reservoir B. So this being the system and this being the surroundings. Okay, so let us calculate the value of delta SA. Now, if you will see the reservoir A, what is happening in case of reservoir A? You can see it here. Reservoir A is losing heat. Just see it here. I'm just removing these annotations, whatever I have written here. So you can see Q heat is leaving the reservoir A. Once it is leaving the reservoir A, that means it has to be negative heat because it is going out of the system. Whereas for the reservoir B, this value Q is entering into the system, or it's basically the reservoir B is in the surroundings. So Q amount of the heat is added to the surrounding. Okay, so it is a positive for reservoir B. So what we can write here is delta S of the universe is equal to minus q divided by t plus q divided by t2. So finally, this is the expression that we get. Now we have to show that this particular value is positive. Only then we can say that this process is irreversible. Okay, or the entropy of the universe is increasing. So you know that T1 is greater than T2. This we have already assumed actually. I don't have said earlier itself, but the value of T1 is greater than T2. So what will happen to the numerator? What is the value in the numerator? Will it be positive or negative? Tell me. Positive. So it is positive. Okay. Denominator, it's a multiplication, so it's going to be positive. Positive. Okay, and q, it is already a positive quantity. So all means quantities are positive quantities, so that means the delta S of the universe is going to be positive. Okay, so what does it mean? Since the delta S of the universe is positive, so the process is irreversible. It clearly means that the heat transfer through a finite temperature difference makes a process irreversible. Is it okay?
Yes, sir. Okay, now let us go to the next topic, mixing of the two fluids. Now, once again, here also we have to make use of the principle of the increase of entropy and prove that the mixing of two fluids is a irreversible process, or during this process, the entropy of the universe will change of the entropy of the universe will be greater than zero. That is what we have to do. So, what we have considered here, we have uh, two subsystems and in an adiabatic enclosure here. This is a adiabatic enclosure. There is a partition in between this adiabatic enclosure, and there are two fluids. One fluid is here, and the second fluid is here. Okay, so mass of fluid one is m1, its specific heat is c1, and its temperature is t1. Whereas for the second fluid, the mass is m2, specific heat is c2, and the temperature is t2. So this has been given to us, and both these are separated by a partition. Now let us one more thing that we have to uh, we should understand here is that we will be breaking this partition so that the mixing of the two fluids can take place. Now, when this partition is removed, what will happen? There will be a final temperature after mixing. Let us consider that final temperature is Tf. It's written here Tf. So, what is the value of Tf then? देखो हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक है T1 है, एक T2 है. If I say the temperature T1 is 100 degrees Celsius and the temperature T2 is 40, then what will be the value of the final temperature Tf? Where it will it lie? Will it be greater than 100 degrees Celsius? Will it be less than 40 degrees Celsius, or will it be between 40 and 100? Tell me. In between. In In between. between, in between. Okay, so that is why it is written that the value of Tf lies between T1 and T2. Now इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाइनल टेम्परेचर जो है Tf है, और मैं अगर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि T1 is greater than T2 and final temperature which we are going to get is Tf. So it means fluid 1 will lose heat whereas the fluid 2 will gain heat. ठीक है. Yes. Sir. सो और जितना फ्लूइड वन जो है हीट लॉस करेगा उतना ही फ्लूइड टू जो है हीट गेन करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट हैज बीन रिटन ऑन दिस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. m1 c1 t1 minus tf is equal to m2 c2 tf minus t2 because tf is greater than t2. Is it clear? Is this equation clear to you? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ से टी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. तो कैलकुलेशन में क्या है, ऊपर अगर आप देखोगे तो दिस इज द एनर्जी पार्ट फॉर द फ्लूइड वन, दिस इज द एनर्जी पार्ट फॉर द फ्लूइड टू, और नीचे जो है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट दोनों का आ गया, दोनों का टोटल आ गया. सो फाइनल टेम्परेचर विल हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ये हमने फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया. अब देखो हमने ये जो है दिस इक्वेशन विच वी हैव अप्लाइड हेयर, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, जो फर्स्ट लॉ के बेसिस पे है एनर्जी कंजर्वेशन, और यहाँ से हमने जो है फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया. अब अगर हमने अब बेसिकली जो हमने प्रूव करना है कि ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, उसके लिए हमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों सिस्टम्स की, और उसको टोटल ऐड करना पड़ेगा. और टोटल ऐड करने के बाद हमें ये शो करना पड़ेगा कि फाइनल वैल्यू जो है इट इज़ पॉजिटिव. अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट इफ़ इट इज़ पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो, देन दिस इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि पार्टीशन था जब, तो हमारे पास दो सब सिस्टम थे, हम दोनों सब सिस्टम्स के लिए जो है चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो पहला सिस्टम जो है वो डेल्टा S1 है, फ्लूइड सिस्टम जो है सब सिस्टम 1 है. अब उसके लिए अगर हमने कैलकुलेट करना है एंट्रोपी को, तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला वह है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, T1 से लेकर TF तक. ये T1 है और ये TF है. देखना ध्यान से जरा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ. इफ़ यू आर अनेबल टू सी, सफिशिएंट है बड़ा या इसको और बड़ा करूँ, बताओ. ठीक है सर. चलो मैंने इसको 150% कर दिया. यहाँ पे देख लो ध्यान से. तो T1 से TF तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी. अब डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे, हम जो है इसको ले रहे हैं m1 c1 dt डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज mc dt इज हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो m और c को हम कांस्टेंट मान सकते हैं,
और जब हमने इंटीग्रेट किया तो इस जो डी टी बाई डी को यहाँ से इंटीग्रेट किया, देन वी गेट लॉग ऑफ टी एफ माइनस लॉग ऑफ टी एफ बाई टी वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर ये टेम्परेचर जो है टी एफ ये केल्विन में है, तो इसने नेक्स्ट लाइन में इसको जो है सेल्सियस प्लस 273 की फॉर्म में लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट अप टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओनली, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, अब ये क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव सिंस टी वन इज ग्रेटर देन टी एफ। मतलब ये जो है टी वन, ये जो है लार्ज है, ओके, हायर वैल्यू है इन कंपेरिजन टू टी एफ, क्योंकि टी एफ जो है इट इज़ लेस देन टी वन है। सो नेचुरली है कि डेल्टा एस वन की वैल्यू ये नेगेटिव आएगी, ओके, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। इसी तरह से हम दूसरे सब सिस्टम के लिए निकाल लेते हैं, जहाँ पे गैस 2 है या फ्लूइड 2 है, तो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट M2C2 log ऑफ टी एफ बाई टी टू। तो दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, टी एफ की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन टी टू, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, दोनों का सम आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम ऐड करेंगे अब इन दोनों को, इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो अब बता सकते हो कि ये फाइनल वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि एक वैल्यू जो है राइट साइड वाली M2C2 log ऑफ टी एफ बाई टी टू, ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू जो है नेगेटिव है। अब बताओ फाइनल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगी। हाउ आर यू सो श्योर सर विदाउट कैलकुलेटिंग? क्योंकि सर इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है यूनिवर्स का। नहीं देखो वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो इट, बट एक्चुअली में क्या है कि हमें जो है प्रूव करना है यहाँ पे, और प्रूव करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया नेक्स्ट स्टेप में कि M1 और M2 जो दोनों के मासेज हैं ना वो बराबर हमने एज्यूम कर लिए, और जो दोनों की स्पेसिफिक हीट है वो भी एज्यूम इक्वल कर ली। मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड पे जो फ्लूइड है ना उसका हमने ये मान के चला कि दोनों फ्लूइड जो है सेम फ्लूइड है, दोनों के मासेस भी सेम है, और क्योंकि फ्लूइड सेम है इसलिए उनकी स्पेसिफिक हीट भी सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे M1 और M2 को M के इक्वल मान लिया, C1 और C2 को C के इक्वल मान लिया, तो फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब अगर ये एक्सप्रेशन आ गया, देख लो इसको ध्यान से, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता? if you can understand this because it is quite simple। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे MC तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे log TF बाई T1 और log TF बाई T2, बिकॉज इट्स ए log टर्म और दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, log लेने के बाद। सो यू विल गेट log TF स्क्वायर बाय T1 बाय T2। दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। Now tell me whether it is greater than 0 or not. Okay, Sir, बताओ। positive. It is positive. How do you know? Sir, sir, actually, mass MC value same है for both the fluids. So the value of TF is T1 plus T2 by 2. By the energy conservation equation, heat in is equal to heat out, and so the Okay. value of TF is T1 plus T2 by 2, and arithmetic mean is always हाँ greater देखो than यहाँ पे 7. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में TF की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है MC1 MC2 और ये MC ये कट जाएगा, ओके, नीचे तो डबल हो गया ना इसका, तो ये 2 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। ऊपर जो आ गया यहाँ पे T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ट्वाइस MC है, और नीचे जो है T1 और T2 का स्क्वायर रूट कैसे आया है ये एक बार देखें जरा। अच्छा, नीचे जो है T1 प्लस T2 T1 इंटू T2 है, ओके, सो T1 इंटू T2। सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस स्क्वायर रूट, कैसे आया ये? बताओ कैसे आया? देखो ये जो स्क्वायर है ना, क्योंकि ये लॉग टर्म में है, तो अगर हम इसको ऊपर ले यहाँ पे ले जाएंगे
तो नेचुरली नीचे वाला जो होगा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने इसको ऐसे लिख लिया है, इट इज़ इक्वल टू एम सी लॉग ऑफ टी एफ डिवाइडेड बाय T1 T2 अंडर रूट, और इसका जो है हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो स्क्वायर को हम ऊपर ले गए, मतलब स्क्वायर को हमने शिफ्ट कर दिया आगे यहाँ पे, पावर को यहाँ पे, तो ये यूज़ करके हमने जो है हमारे पास आ गया दिस एक्सप्रेशन। तो ऊपर जो आ गया हमारे पास T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 और अंडर डिवाइडेड बाय T1 डॉट T2, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है और एक अर्थमेटिक मीन है, ऊपर क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है और नीचे जो है ज्योमेट्रिक मीन है। सो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में से जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक इफ़ आई टेक कैन से टू नंबर्स, मान लो आपने लिया 20 और एक लिया 40, अगर मैं ये दो टेम्परेचर हैं इसको ऐड करूँ और डिवाइड बाई 2 करूँ तो 30 आएगा। ऊपर की टर्म जो है 30 हो गई, नीचे जो है अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो नीचे अंडर रूट आएगा T1 और T2 का 800 का स्क्वायर रूट, तो 800 का स्क्वायर रूट इट हैज़ टू बी लेस देन 30। तो इसका मतलब जो टर्म न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू हायर है इन कंपैरिजन टू द टर्म विच इज़ देयर इन द डिनोमिनेटर। सो नेचुरली जो डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू आ रही है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिक्स करते हैं दो फ्लूइड्स को तो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की इंक्रीज होगी, और बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग इट विल मेक द प्रोसेस इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। ओके, ये आ गया। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, अभी मैं आज जो है यहीं फिनिश कर रहा हूँ, आई हैव सम वर्क। तो यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2, एक ये पढ़ लो आप, और एक जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए फाइनाइट बॉडी एंड ए TER दैट इज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इन दो टॉपिक्स को पढ़ो आप और समझो अगर कुछ समझ में। और इसी तरह से ये 7.85 है, इसको भी देखो, ये भी जो है, ओके और ये सर। एडियाबेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, ये देखो, ये 3-4 टॉपिक देखो, और उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना एंट्रोपी ट्रांसफर मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। 7.8 जो है आप कंप्लीट करो पूरा का पूरा, और फिर डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट थर्सडे आपका टेस्ट भी होगा। ओके सर उसमें थ्योरी पार्ट होंगे या न्यूमेरिकल? देखो अब बिल्कुल जस्ट ए मिनट अभी बात करते हैं।